Hello students, welcome to the new video, that is sexual reproduction in flowering plant. Previously we have discussed about sexual reproduction. Before that we have discussed about reproduction on the basis of unicellular and multicellular organism. In this module we are going to discuss about reproduction in the flowering plant. We know very well flower is the structural unit of sexual reproduction in the plant. It consists four floral whorls as calyx, corolla, androecium and gynoecium. But before start this lecture, I just wanted to tell you that is cell. Cell is a structural unit of a life. We can say for a human beings, cell is the basic or the structural unit of a life. Because of the bundles of the cell, fixed geometrical shape we acquire, and that shape helps us to sustain ourselves in the nature. So, to discuss sexual reproduction in plants and animals, so today in this module we are going to discuss about sexual reproduction in plants only. Right now on the screen you are able to see the flower, the structure of flower, which is consist with stigma, stele, ovary, that is pistil. Second, the structures are pollen tube, anther, filament, that is filament, nothing which you can able to see, that is stamen. Second one is ovule, next sepal, and last one is stalk. As we know very well, flower is the structural unit of a sexual reproduction in the plant. It consists of four floral whorls, as you can see on the screen right now, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. You know over here stamen, that is anther and filament, which are nothing but the parts that is help them to cover it. The arranged in a sequence for outside to inside, androecium and gynoecium are called as essential volors because they perform the function of reproduction. Volors, calyx and corolla are called as accessory volors because they are responsible for the production of inner volors. As we can know very well, see, androecium and gynoecium are the essential volors. For example, if androecium and gynoeciums are present, so they start performing as a reproductive organelles in the flower plants. But as we can see, because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called as accessory volors because they are responsible for the production of inner volors. The membrane of calyx are called as sepals, as you can see on the screen right now in this image. Member of calyx are called as sepals. On the screen, are you able to see this? The green portion is nothing but the sepals. This is helps to cover the petals or to apply the protective layer to hold the petals over the region. They are green colored membrane of corolla are called as petals, and they are variously colored. As you can see, the red colors are the petal, which are also called as corolla, and these are various color. You know, for a different flower, different petals are there. We have taken an example of hibiscus flower. That's the reason you are able to see over here the petals are red colored, and in this petal we can clearly see the anther, filament, ovary, all the things we can see clearly. A flower is called as bisexual if the both volors, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower. Examples for this is hibiscus flower.
You know, right now on the screen you are able to see the hibiscus flower, and because of that it is also called as unisexual. Why so? Because androecium and gynoecium both are present in the same flower. They do not dependent on any other flower to cross it themselves. For example, right now we are using BT cotton, but previously in Asian times we have to plant BT cotton in the two formats, that is male formats are different and the female gametes are different. What exactly the farmers does? They took the male flower and started pollinating on the female flower. For that they have to need a large wide area while production is less. स्टूडेंट्स, पहले होता था कि जो हम लोग बीटी देखते, बीटी कॉटन, जिसको आज हम लोग बीटी कॉटन बोलते हैं, पहले उसको खाली कॉटन बोला जाता था। ये दो उन किसानों को दो अलग अलग एरिया में यार्ड में लगाने पड़ते थे, जिसमें मेल फ्लावर अलग जगह पे लगाए जाते थे एंड फीमेल फ्लावर्स अलग जगह पे लगाए जाते थे। किसान लोगों को क्या करना पड़ता था, मेल फ्लावर को तोड़ के उनको पॉलिनेट करना पड़ता था फीमेल फ्लावर के ऊपर बाय डिपिंग, बाय हैमरिंग ऑन इट और बाय जस्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। बट राइट नाउ वी डोंट नीड इट। आजकल हम लोगों को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता था, क्योंकि फ्लावरिंग होती थी एंड रिपिंग होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स के ऊपर होती थी एंड मेल फ्लावर्स जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेटिंग करने के लिए ही यूज़ में आते थे, जिस वजह से किसानों का खर्च तो बढ़ता था, एक तो एरिया भी कम होता था और उस वजह से क्या होने लग गया था, उसी वजह से जो है उनका प्रोडक्शन कम हो गया, जिस वजह से उनको इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आने लगी। ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो है क्रॉस ब्रीड करके एक यूनिसेक्सुअल प्लांट लगाया कॉटन का, एंड जिसको हमने नाम दिया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मीन्स व्हाट? फुल फॉर्म ऑफ बीटी इज बैसिलिस थोरेंजिनेसिस। सो बैसिलिस थोरेंजिनेसिस का एक ब्रिंजल भी आता है, बीटी ब्रिंजल जिसको कहते हैं, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। यू नो, अब बाइसेक्सुअल बोले तो क्या, जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने हिबिस्कस फ्लावर लिया था। हिबिस्कस फ्लावर आपने देखा है, उसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से उस फ्लावर को अपने फ्रूट को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरी, जो देख रहे हो जो ग्रीन कलर्ड है, जिसके इनर साइड में आपको वो वूल दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरी का पार्ट जो होता है वो है आपका गायनोशियम, एंड जो इस साइड में एंथर फिलामेंट आप देख पा रहे हो वो है इस प्लांट का या फिर इस फ्लावर का जो है एंड्रोशियम, सॉरी। सो ओवरी जो है गायनोशियम का पार्ट है एंड जो स्टेमन एंथर है वो एंड्रोशियम का पार्ट है। सो इस फ्लावर में जो हिबिस्कस फ्लावर है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि इसमें जो है इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करने के लिए किसी और फ्लावर के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे पहले कॉटन में होता था। लेकिन अब ये दोनों एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए, यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट? हैविंग बोथ द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। यू कैन क्लियरली सी दैट those flower which are having androecium and gynoecium are present in themselves, so these are called as bisexual. For example, hibiscus flower, which is also known as unisexual. If any one of the above mentioned two whorls is present in the flower, if only androecium is present, then it is male flower. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंड्रोशियम जो है यहाँ पे एंथरन फिलामेंट जो दिखाई दे रहा है वो आपका एंड्रोशियम है। अगर ओनली एंड ओनली एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे वो जो फ्लावर है वो मेल फ्लावर है। एंड इफ ओनली गायनोशियम इज प्रेजेंट, दैट इज ओवरी इज प्रेजेंट और ओवरी इज प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया का। आपने अगर पपाया का फ्लावर देखा है तो पपाया के फ्लावर में आपको मेल फ्लावर भी दिखाई देगा एंड फीमेल फ्लावर भी दिखाई देगा, फीमेल फ्लावर भी दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जो कि पपाया के अंदर प्रेजेंट है।
अब इन दोनों में क्या होता है, पोलन ग्रेन का एक्सचेंज होता है। और ये पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्सेस, जैसे कि मधुमक्खी है या फिर बी है, हनी बी है, ये सारे इसके एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जो कि फीमेल गैमेट में मेल गैमेट के फ्लावर को जो है ट्रांसफ़र करने का या फिर उसके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने का जो है काम करते हैं। पपाया के जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ही प्लांट में जब एक ही फ्लावर में ये सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन से एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्क्रीन पे आपको एंड्रोशियम भी दिख रहा है, गायनोशियम भी दिख रहा है। जब ये दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं तो ऐसे पार्ट्स को, ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, या जिनमें ये बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो है प्रेजेंट होता है। Many flowers have the stalk for support are called as pedicel, and such a flower are called as pedicellets, where flower without stalk is called as sessile. As you can see on the screen, sessile means what? ऐसे फ्लावर जिसको स्टेम नहीं होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं निशिगंधा। निशिगंधा जो है सिसेल्स फ्लावर का एक पार्ट है, एंड इसमें जो फ्लावर के लिए स्टॉक जो होता है, स्टॉक जैसे सपोर्ट करने के लिए जो स्टॉक होता है उसको पिडिसेल कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को पिडिसिलेट्स कहते हैं जो स्टॉक के साथ में सपोर्टिवली हो। और जो विदाउट स्टॉक जो होते हैं उनको सिसेल्स कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल जो है निशिगंधा है। अगर आप निशिगंधा का पेड़ देखते हो, फ्लावर देखते हो, तो वो विदाउट सपोर्ट होता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो Androecium is the male volar and it is member are called as stems. Gynoecium is a female volars and it is membrane are called as carpels. जो राइट डाउन इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। एंड्रोशियम जो मेल वॉलर होता है, इसके मेम्ब्रेन को स्टेम्स कहा जाता है या फिर स्टेमन्स कहा जाता है, एंड फीमेल वॉलर्स जो होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स को जो है कार्पेल्स कहा जाता है। Member of gynoecium are called as carpels. Write down this point also. Member of gynoecium are called as carpels. These may be separated or united. Ovary is present at the basal end of each carpel. A hollow stele comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of the stele. Ovary contain one or many volts. Embryo sac is formed in each volule by meiosis. The process which is help to embryo sac to form in each volule. So this process is the meiosis process, and each embryo sac consists of haploid egg cell and 2 haploid polar nucleus. देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो गायनोशियम होता है इसको कार्पेल कहा जाता है, एंड गायनेशियम जो कार्पेल कहा जाता है ये ओवरी में प्रेजेंट होता है, जो कि बेजल होता है, एक एंड के साइड में होता है, और एक हॉलो स्टाइल में होता है ओवरी के अंदर। स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और इसकी जो टिप होती है वो स्क्ले कही जाती है, और ओवरी में एक या फिर एक से ज़्यादा कितने भी जो है वोवल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्रत्येक वोवल के बीच में प्रेजेंट होता है, और जिस प्रोसेस की हेल्प से एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर आता है, ओवल के अंदर आता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मियोसिस। अब मियोसिस ही इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस वजह से ओवरी के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक जो है फॉर्म होता है, और जिस वजह से फ्लावर का जो पार्ट है वो हम लोगों को थोड़ा सा सॉगी का जैसा दिखने लगता है। और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक जो है हैप्लॉइड एग सेल्स से कंटेंट होता है, एंड जिसमें 2 जो है हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर भी प्रेजेंट होते हैं, एंड इसी में पोलर ग्रेन्स जो है वो एक से दूसरी जगह पे जो है ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा। अब ये जो ट्रांसफ़र होता है, द पोलर ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। देखो, राइट डाउन दिस डेफिनेशन स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस डेफिनेशन, दैट इज पोलन ग्रेन्स forms
anther and transfer to the stigma. This process is called as pollination. Pollination occur with the help of abiotic agent, for example wind, water, insect and other animal which are biotic agents. देखो pollination जो है फ्लावर में दो तरह से हो सकता है. उसके लिए नेचुरल प्रोसेस में जो है अबायोटिक एजेंट होते हैं और उसी प्रोसेस में बायोटिक एजेंट भी होते हैं जैसे कि इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स. सो पॉलिनेशन अगर होता है तो उसी टाइम पे फ्लावर जो है, फ्लावर रिपिंग होती है या फिर फ्रूट्स ऑकर होते हैं. फ्रूट ऑकर करने के लिए, किसी भी प्लांट के ऊपर फ्रूट ऑकर करने के लिए उन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रत्येक मेल स्टार्ट होकर एक्सटर्नल एजेंट जो कि अबायोटिक रिएजेंट हो सकते हैं या फिर बायोटिक एजेंट हो सकते हैं, उनके हेल्प से होता है. और इसी की वजह से जो है फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जो कि रीप होके हम लोगों को खाने के लिए ऑब्वियसली जो है पेड़ के ऊपर आता है. अभी हम लोग जो है पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे. द पोलन ग्रेन एड्रेस टू द स्टिग्मा विच कंसिस्ट or contain two cells, a germinative cells and a tube cells. Next process is the pollen tube cell grow into a stele. The generative cell travel inside the pollen tube. It divides to form two sperms. The pollen tube penetrates an opening in the ovule called micropyle. One of the stem fertilizes the egg to form the diploid zygote. The other sperm fertilize to two polar nuclei to form the triploid endosperm, which will become a food source for the growth embryo. And in this process only embryo sac is generated. As you can see on the screen, you are able to see the double fertilization in angiosperm. So pollination occurs with the help of abiotic agents, that is wind, water, and biotic agents, that is insect and other animals, we know very well. So the stigma becomes stick during pollination. Pollen grains, when they fall upon such a sticky stigma, that is long pollen tube, and two male gametes are formed. The pollen tube carries male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via male gamete until with the egg cell from the zygote. This is fertilization. Second male gamete unit with the two polar nucleus and endosperm is formed. As two nucleus participate in this process, it is called as double fertilization. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि जो पोलन ट्यूब होती है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है वाया स्टेल, और इसकी जो टिप होती है वो पोलन ट्यूब को ब्रस्ट करती है एंड उसको टू मेल गैमेट को रिलीज करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि कैसे ये डिवाइडेशन एंड प्रोसीजर होते रहता है. दैट इज़, अब इसमें क्या होता है बच्चों, पोलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक के अंदर रीच होती है तो उस टाइम पे फर्स्ट जो है गैमेट जो है यूनिट होता है और एग सेल जो है फॉर्म होती है जाइगोट के अंदर, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. अब सेकेंडली क्या होता है, मेल गैमेट जो है वो यूनिट होते हैं दो अदर पोलर न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म के साथ में, और इसी को हम लोग जो है डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. एंड व्हेन पोलन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर born on the same plant, it is called as self pollination. Where it is involves two flower born on two plants of the same species, it is cross pollination. While discovering the new high yielding and resistance varieties of plant, scientists bring about the pollination with the help of brush. देखिए बच्चों, इसको क्लियरली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब पॉलिनेशन होता है और दो फ्लावर जो होते हैं वो सेम प्लांट के ऊपर बॉर्न होते हैं. जैसे हमने पपाया के फ्लावर देखे हैं, वो दोनों भी फ्लावर सेम प्लांट पे आते हैं, और जब दोनों फ्लावर जो हैं जो सेम प्लांट पे बॉर्न होते हैं उनको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. और जब
दो फ्लावर जो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के ऊपर या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए हैं, लेकिन सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। सेम स्पीशीज़ के जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट दो अगर फ्लावर जो है डिफरेंट दो प्लांट्स के ऊपर अगर आते हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब कभी भी साइंटिस्ट लोगों को न्यू कुछ डिस्कवर करना होता है, जैसे कि बीटी वगैरह जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब कभी भी जब न्यू येल्डिंग उनको करनी होती है या फिर रेजिस्टिव वेराइटीज़ उनको न्यू वेराइटीज़ प्लांट के बारे में उनको खोजनी होती है, उस टाइम पे साइंटिस्ट जो है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं अबाउट द पॉलिनेशन। एंड वो जो पॉलिनेशन होता है वो साइंटिस्ट जो है ब्रश के हेल्प से करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है तो इसमें जो है जो hen होती है उनके फीदर का भी हेल्प होता है जो है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। hen के फीदर का ब्रश बनाया जाता है। कहीं कहीं पे मैंने तो देखा भी है जो हॉर्स होता है उसकी पूंछ के दुम के बालों का भी ब्रश बनाया जाता है, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प में आता है। So I hope you don't forget to like the video if you like it. Don't forget to share my video with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Whenever I'll upload the video, you'll get the notification. For that notification and updates, you have to subscribe my channel. So I hope you enjoy this phenomenon. If you have a doubt, so ask me in the comment box which is given below. I hope you enjoy this phenomenon. So again, like, share and subscribe my channel. Thank you.